السلام علیکم فرینڈز، IDA ویکلی میں پاکستان کی طرف سے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف ڈرون سٹرائک کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جنوبی کوریا اور انڈونیشیا کے KF-21 ایئر کرافٹ کی اپڈیٹ سمیت گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان نے 10 مئی کو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ایریا کے قریب افغانستان کے علاقے میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ ڈرون سٹرائک بنیادی طور پر پاکستان کے وزیرستان ریجن سے ملحقہ افغانستان میں کیا گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس ڈرون سٹرائک میں 4 دہشت گرد ہلاک اور کچھ کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس سے پہلے ان سٹرائکس کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تھی، تاہم اس کی مستند ذرائع سے تصدیق گزشتہ روز ہوئی ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی، تاہم TTP کی جانب سے اس سٹرائک اور ہلاکتوں کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان نے چند ہفتے پہلے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر افغانستان میں ایئر سٹرائکس کنڈکٹ کی تھی، جس میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس نے اس وقت ان سٹرائکس میں اپنے JF-17 تھنڈر طیاروں کو استعمال کیا تھا، تاہم حالیہ سٹرائک بارڈر ایریا کے قریب اور ڈرون کی مدد سے کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا کے انڈر ڈیولپمنٹ KF-21 ایئر کرافٹ نے مزید 2 مائل سٹونز اچیو کیے ہیں۔ KF-21 کے ایک پروٹوٹائپ میں اب سے چند روز پہلے لائیو میزائل فائرنگ سے پہلے ماک 1.8 کی سپیڈ سے زائد فلائی کرتے ہوئے ایک اور مائل سٹون اچیو کیا ہے، جبکہ اس طیارے سے میٹیور ایئر ٹو ایئر میزائل کو بھی کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا جا چکا ہے۔ حالیہ ٹیسٹنگ کے دوران طیارے کے ایک پروٹوٹائپ کو اگریسو منورز پرفارم کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ خیال رہے کہ KF-21 کے ٹوٹل 6 پروٹوٹائپ تیار کیے جانے تھے، جس میں سے غالباً 5 پہلے ہی تیار کیے جا چکے ہیں اور یہ پروٹوٹائپ مختلف طرح کی ٹیسٹنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ KF-21 کے پروٹوٹائپ نے 8 مئی کو ایئر ٹو ایئر میزائل ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا، جس میں میٹیور ایئر ٹو ایئر میزائل سے 87 کلومیٹر دور ٹارگٹ ڈرون کو کامیابی سے انٹرسیپٹ کیا گیا۔ فرینڈز، پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز نے ملائیشیا میں منعقد ہونے والی دفاعی نمائش میں آج اپنے نئے ویپنز شوکیس کیے ہیں۔ کٹس کی جانب سے جہاں برگ سیریز کے نئے ایئر ٹو گراؤنڈ پریسیشن گائیڈڈ منیشن ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے آفر کیے گئے، گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز نے برگ سیریز کے ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن برگ 45P، برگ 50P اور برگ 25G کے نام سے نئے میزائلز متعارف کرائے ہیں۔ ان میں سے برگ 45P پروڈکشن میں ہے اور یہ 10 کلو گرام کے وار ہیڈ کے ساتھ ٹوٹل 45 کلو گرام وزنی ہے۔ برگ 45P کی زیادہ رینج 12 کلومیٹرز ہے۔ یہ میزائل سیمی ایکٹیو لیزر ہومنگ گائیڈنس استعمال کرتا ہے۔ دوسرا برگ 50P اس وقت کوالیفیکیشن کے مراحل سے گزر رہا ہے، جبکہ اس کا وار ہیڈ 20 کلو گرام وزنی ہے اور اس میں اینٹی آرمر وار ہیڈ بھی آفر کیا جا رہا ہے۔ اس کا ٹوٹل وزن 50 کلو گرام ہے اور یہ زیادہ 15 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ برگ 25G کے نام سے ایک اور ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے آفر کیا گیا ہے۔ یہ ویپن لیزر گائیڈنس کا استعمال کرتا ہے، جبکہ 8 کلو گرام وزنی وار ہیڈ کے ساتھ ٹوٹل 25 کلو گرام کا وزن رکھتا ہے۔ اس کی زیادہ رینج 14 کلومیٹر ہے اور یہ میزائل اس وقت ڈیولپمنٹ کے مراحل میں ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز نے ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کے موقع پر اس سے پہلے ایکسپورٹ کسٹمرز کو آفر کروائے گئے تیمور ایئر لانچ کروز میزائل اور ہربا NG کے نام سے اینٹی شپ کروز میزائل کے علاوہ فتح سیریز کے گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز اور اپنے شاپر سیریز کے ڈرونز بھی اس دفاعی نمائش میں ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے پریزنٹ کیے ہیں۔ اگر آپ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل، ہربا NG اور فتح سیریز کے گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز کے علاوہ شاپر سیریز کے ڈرونز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان ٹاپکس پر کمپریہنسو ویڈیوز پہلے سے چینل پر موجود ہیں۔ فرینڈز، پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز نے ملائیشیا میں جاری دفاعی نمائش میں لو فلائنگ ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور ایئر کرافٹ کے علاوہ کروز میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اپنے مین پورٹیبل شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کا لیٹسٹ ویریئنٹ متعارف کرایا ہے۔ انزا MK4 کے نام سے اس سسٹم میں نہ صرف گزشتہ ویریئنٹ سے رینج میں اضافہ کیا گیا ہے، بلکہ اس سسٹم میں ایڈوانسڈ
गाइडेंस सिस्टम की बदौलत जैमिंग से निपटने की सलाहियत का भी दावा किया गया है। अंजा MK4 500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक पहले बयान किए गए थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ 19 किलोग्राम वजनी है और इसका इंटरसेप्शन ऑल्टीट्यूड 4000 मीटर्स बताया गया है। ख्याल रहे कि इससे पहले गेट्स अंजा के 3 वर्जन मुतारिफ करा चुकी है, ताहम इस एडवांस वेरिएंट को पहली मरतबा दिफाई नुमाइश में एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए प्रेजेंट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने चीन की फिजाइया के तैयारी की येलो सी के करीब 4 मई को ऑस्ट्रेलियन नेवी के हेलीकॉप्टर के करीब परवाज को गैर महफूज और नाकाबिल कबूल करार दिया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि 4 मई को येलो सी के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के दौरान ऑस्ट्रेलियन नेवी के हेलीकॉप्टर के दौरान परवाज बहुत करीब आकर चीन के जंगी तैयारे ने फ्लेयर्स रिलीज किए थे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का एक MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर जिसे होबार्ट डिस्ट्रॉयर से डिप्लॉय किया गया था, वो ऑपरेशन आर्गस के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की शुमाली कोरिया पर आयद पाबंदियों को इन्फोर्स करने के लिए मामूल की परवाज पर था, जब ऑस्ट्रेलिया वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लिस के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को चीन के जेडन तैयारे ने इंटरसेप्ट किया। उनका कहना था कि उस वक्त सूरत हाल मजीद इश्तियाल अंगेज हो गई जब चीन के तैयारे ने ऑस्ट्रेलियाई हेलीकॉप्टर से सिर्फ 300 मीटर दूरी और 60 मीटर की बुलंदी पर फ्लेयर्स रिलीज किए। उनका मजीद कहना था कि इस मौके पर ऑस्ट्रेलियन पायलट्स को मजबूरन फ्लेयर से हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए बचाव के लिए एक्शन लेना पड़े। खुशकिस्मती से किसी किस्म का कोई हादसा या इंजरी रिपोर्ट नहीं की गई और हेलीकॉप्टर ने अपना मिशन जारी रखा। इधर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा ने इस वाक़े को संजीदा लेने और इस पर चीन की हुकूमत की तरफ से वजाहत तलब की है। इसके अलावा उन्होंने दोनों वफाद के दरमियान पेशा वराना और महफूज इंटरेक्शन की तवक्को पर भी जोर दिया है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की स्टिंगरे टेक्नोलॉजीज जो डिफेंस, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में सर्विसेज फराहम करती है, इसने मलेशिया में होने वाली दिफाई नुमाइश में मलेशियन कंपनी एंकर टेक्नोलॉजीज के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन से मुतालिक मुआहदा तय किया है। दोनों कंपनियों के दरमियान तय पाने वाले इस ताउन के मुआहदे के दौरान रॉयल मलेशियन नेवी के कमांडर के अलावा पाकिस्तान के मलेशिया में तैनात हाई कमिश्नर ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर स्टिंगरे टेक्नोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतर सलीम और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एहसन डार भी मौजूद थे। मलेशियन कंपनी एंकर टेक की तरफ से एडमिरल कमरुज़्ज़मा बदरुद्दीन और स्टिंगरे टेक्नोलॉजीज की तरफ से अतर सलीम ने इस हवाले से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की स्टिंगरे टेक्नोलॉजीज बुनियादी तौर पर ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की ही सब्सिडरी है। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने मलेशिया में होने वाली इस दिफाई नुमाइश में न सिर्फ शिरकत की बल्कि अपने नए वेपन्स भी एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए ऑफर किए। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के ड्रोन्स के अलावा नए एयर टू ग्राउंड मिशन, एंटी शिप और गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स में कई ममालिक की जानिब से खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया गया। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की जानिब से TB2 ड्रोन की तुर्क कंपनी बेकर से एक्विजिशन के बाद अब अकिंजी ड्रोन की एक्विजिशन के भी इम्कानात हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के सीनियर ऑफिसर्स के अलावा नेशनल डिफेंस कॉलेज ऑफ बांग्लादेश के एक वफ्द ने तुर्क कंपनी बेकर के नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया है। दौरे के दौरान इन ऑफिशियल्स को तुर्क कंपनी के ऑन गोइंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ख्याल रहे कि बांग्लादेश तुर्क कंपनी बेकर से TB2 ड्रोन्स पहले ही एक्वायर कर चुका है और तुर्की की जानिब से बांग्लादेश को 6 TB2 ड्रोन्स दिसंबर 2023 में डिलीवर कर दिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की जानिब से अब तक टोटल 12 TB2 ड्रोन्स एक्वायर किए जा चुके हैं, जबकि नियर फ्यूचर में तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा अकिंजी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की भी एक्विजिशन के इम्कानात हैं। बांग्लादेश की आर्मी पहले ही तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा TRLG गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स इस्तेमाल करती है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ्यूचर में भी मजीद फ़रोग दिया जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्की के मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल ने रिपोर्ट दी है कि तुर्की के अंडर डेवलपमेंट खान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने दूसरी कामयाब टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। गो के सेकंड टेस्ट फ्लाइट के बारे में अभी तक टेक्निकल डिटेल्स शेयर नहीं की गई, ताहम सोशल मीडिया पर भी इस किस्म की रिपोर्ट शेयर की गई हैं कि खान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के फर्स्ट प्रोटोटाइप ने
दूसरी कामयाब टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। याद रहे कि खान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के फर्स्ट प्रोटोटाइप में फर्स्ट फ्लाइट 21 फरवरी 2024 को कंडक्ट की थी, जो तकरीबन 13 मिनट तक जारी रही थी। ताहम दूसरी टेस्ट फ्लाइट के बारे में अभी तक मजीद तफसीलात शेयर नहीं की गई। खान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के दूसरे और तीसरे प्रोटोटाइप की असेंबली इस वक्त मुख्तलिफ स्टेजेस पर है, जबकि इस तैयार है कि ये दोनों प्रोटोटाइप भी नियर फ्यूचर में बाकायदा रिवील किए जाएंगे और इनकी टेस्ट फ्लाइट्स भी 2025 के अवाइल में मुतवक्की है। अगर आप खान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तमाम तफसीलात के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यूएस एयरफोर्स ने मजीद इटालियन साख्ता हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन के लिए बोइंग कंपनी के साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। $178 मिलियन के इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बोइंग की जानिब से यूएस एयरफोर्स को मजीद 7 MH-139A ग्रे वुल्फ हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस नए कॉन्ट्रैक्ट के बाद अब यूएस एयरफोर्स की जानिब से MH-139A हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन की टोटल तादाद 26 हो गई है। MH-139A बुनियादी तौर पर इटालियन कंपनी लेनार्डो का तैयार करदा हेलीकॉप्टर है। ताहम इस हेलीकॉप्टर पर मिलिट्री सिस्टम्स और कस्टमाइजेशन का काम यूएस एयरफोर्स के लिए बोइंग ने सर अंजाम दिया है। MH-139A हेलीकॉप्टर को पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के अलावा पर्सनल और कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस एयरफोर्स की जानिब से इस हेलीकॉप्टर का इंतखाब बुनियादी तौर पर UH-1N को रिप्लेस करने की गर्ज से किया गया है। ग्रे वुल्फ या MH-139A को अपने प्रीडिसेसर से बेहतर सलाहियतों का हामिल करार दिया गया है। ये हेलीकॉप्टर 50% इंक्रीज क्रूज स्पीड और रेंज के अलावा एयरफोर्स को 30% लार्जर केबन कैपेसिटी और 2200 किलोग्राम का एक्स्ट्रा पेलोड कैपेसिटी ऑफर करता है। फ्रेंड्स, बुध के रोज 3 बजे चाइना की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पहले सी ट्रायल्स मुकम्मल करने के बाद शंघाई में वापस शिपयार्ड पहुंच गई है। चाइनीज हुकाम का कहना है कि 8 रोज पर मुश्तमिल फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के ये पहला सी ट्रायल कामयाब रहा है और इस दौरान इस एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और दीगर इक्विपमेंट को टेस्ट किया गया, जो मुतवक्के रिजल्ट्स के मुताबिक परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं। चाइनीज हुकाम का मजीद कहना था कि नेक्स्ट स्टेज में इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर फॉलो अप टेस्ट पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक कंडक्ट किए जाएंगे। ख्याल रहे कि चीन की फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर कैटापल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और अरेस्टेड लैंडिंग के लिए इस्तेमाल की गर्ज से तैयार की गई है। फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका से बाहर बनने वाली सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर है और चीन फ्यूचर में भी इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का मंसूबा रखता है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक चीन मुतवक्के तौर पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तमाम किस्म के सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के बाद 2025 में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नेवी के फ्लीट में बाकायदा शामिल कर देगा। फ्रेंड्स, भारतीय कंपनी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक एहलकार परवीन मिश्रा, जो DRDO के हैदराबाद ऑफिस में काम कर रहे थे, उनके बारे में भारतीय ऑफिशियल्स का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को DRDO की जानिब से ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से मालूमात फराहम की हैं। ख्याल रहे कि अब से चंद रोज़ पहले ही भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर दी गई थी कि भारत और रूस के कंसोर्शियम रामोस एरोस्पेस के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अपने रिटायरमेंट के रोज कुछ अहम कागजात अपने साथ ले गए थे, जबकि DRDO और इसके अलावा दीगर अहम भारतीय इदारों के साथ मुंसलिक अफराद के हवाले से अहम मालूमात की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को फराहम करने का ये पहला वाक़या नहीं है। इस किस्म की रिपोर्ट्स अक्सर औकात सुनने को मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इंडियन आर्मी इसराइली साख्ता हरमस 900 के 2 ड्रोन्स बहुत जल्द अपने फ्लीट में बाकायदा इंडक्ट कर लेगी। इंडियन मीडिया सोर्सेज का कहना है कि इस सिलसिले में इंडक्शन की तकरीब बाकायदा हैदराबाद में इस माह की 18 तारीख को मुनक्किद की जाएगी। ख्याल रहे कि हरमस 900 इसराइली साख्ता ड्रोन्स इंडिया और इसराइल के दरमियान तय पाने वाली डील के तहत ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अब इंडिया में तैयार हो रही है। इंडियन कंपनी अडानी डिफेंस की जानिब से 2 ड्रोन्स इब्तदाई तौर पर इंडियन आर्मी के हवाले किए जाएंगे, जबकि नियर फ्यूचर में मजीद ड्रोन्स की इंडक्शन भी मुतवक्के है। फ्रेंड्स, अज़रबैजान के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो चेक रिपब्लिक से बड़ी तादाद में 155 मिलीमीटर की होइट्ज़र्स अक्वायर कर रहा है।
चेक रिपब्लिक की जानिब से 70-155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्ज़र्स आने वाले अरसे में अजरबैजान को सप्लाई की जाएंगी। ख्याल रहे कि अब से चंद हफ्ते पहले अजरबैजान के बारे में ये रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई थी कि वो 48-155 मिलीमीटर की नोरा हॉविट्ज़र्स स्लोवाकिया से एक्वायर करेगा। ताम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अजरबैजान की जानिब से स्लोवाकिया के अलावा चेक रिपब्लिक से भी 70 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्ज़र्स एक्वायर की जा रही हैं। चेक रिपब्लिक की तैयार करदा इन हॉविट्ज़र्स के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि ये अपनी L45 गन से 39 किलोमीटर की रेंज पर अहदाफ को निशाना बना सकती हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आईडिया वीकली की इस एपिसोड में आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।